Hello friends, welcome to Laurels IAS. Myself Sanjeev Chahal, Director of the Institute. Our ethics series is going on, which will help you in your preparation for civil services. But please subscribe our channel, like and share our videos. Thank you. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स। ये हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ भी बात की थी कि द नेम दिस नॉर्मेटिव इटसेल्फ इंडिकेट कि इट इज रिलेटेड टू नॉर्म्स, कि one has to follow the various norms, whether such norms are designed by a society, by an organization, by a profession and so on. तो normative ethics actually deals with the aspect कि what one must do या what ought to be, कि किसी को क्या करना चाहिए। जैसे हमने जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जब हमने उसको पे बात की थी तो वहाँ पे था कि जो लोगों की ओपिनियन है वो वेरी कर सकती है कि मॉरल क्या है या इमोरल क्या है, बट एज फार एज नॉर्मेटिव एथिक्स इज कंसर्न यहाँ पे पब्लिक की ओपिनियन जो है वो उतनी मैटर नहीं करती। यहाँ पे होता है कि किसी को क्या करना चाहिए। नाउ नॉर्मेटिव एथिक्स एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इट प्रिस्क्राइब अस कि व्हाट टू डू या हाउ वी शुड एक्चुअली एक्ट इन अवर लाइफ, कि वी शुड एक्चुअली फॉलो द धर्मा, द राइटियस वे ऑफ लाइफ, कि हमारा जो वे ऑफ लाइफ है दैट ऑलवेज शुड बी राइटियस, वी शुड ऑलवेज फॉलो द मॉरल्स एंड ऑलवेज फॉलो द एथिक्स। Now, as far as normative ethics is concerned, it further has 6 subtypes, and these 6 subtypes are virtue ethics, then deontology, then consequentialism, then ethics of care or relational ethics, then intuitionism, एंड फेमिनिस्ट एथिक्स। तो हम लोग इन सबको जो है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो विल स्टार्ट विद वर्चुअल एथिक्स। एंड द मेन अथॉरिटी बिहाइंड वर्चुअल एथिक्स वाज अरिस्टोटल। And according to Aristotle, virtue ethics deals with certain essential attributes like honesty, like compassion, like discipline, like truthfulness, and multiple of other essential attributes. Now, as far as virtue ethics is concerned, according to this ethics, one should be a good person, because if a person is virtuous, it obvious his or her actions will always be good. For example, a virtuous person even show compassion towards animals, and that's why this virtue ethics is actually not action based. This ethics is actually person based, कि person should be good, person should be virtuous, कि जब हम लोग virtues को follow करेंगे तो ये obvious होगा कि हमारे जो actions होंगे वो भी हमेशा moral और ethical actions ही होंगे। Now, as far as philosophers are concerned, philosophers mostly put stress upon 4 type of virtues, and these 4 type of virtues first of all discussed by Plato in his book The Republic. अब वो 4 वर्चूज क्या हैं? Number 1 is prudence. So prudence actually means consciousness, कि we should be conscious regarding
कि हाउ वी शुड एक्ट अंडर अ गिवन सिचुएशन, कि एक गिवन सिचुएशन में हमें एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में हमारा एक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए। जैसे ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट्स, तो यू मस्ट नो दिस थिंग कि एक, क्योंकि यू हैव टू फेस डिफरेंट सिचुएशंस, हाउ यू शुड एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज द कैपेबिलिटी। वो एक वर्च्यू होता है, वो माना जाता है कि हर एक सिविल सर्वेंट में वो वर्च्यू होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको जो है वो एक जो प्रिस्क्राइब जो एक्शन है वो कैसा होना चाहिए। And next is fortitude. Fortitude मायने to confront fear. You have to confront the fear. कि if you are disciplined, if you are honest, तो you have no need to fear of anything. आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए क्योंकि आप डिसिप्लिन हो, आप जो हो ऑनेस्ट हो। तो to confront fear is another virtue. Then next is justice. तो this justice actually related to righteousness, कि everyone should be righteous, everyone should act in a righteous way. And the fourth is temperance. Temperance means one should have the capability to of self control, कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है उस पर हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम सेल्फ को जो है वो कंट्रोल कर पाए। In addition to these four, there are certain other virtues which are essential virtues like kindness. If you are kind, you show compassion, you are able to understand and feel others' feelings. Then there is discipline. If you are disciplined, you can achieve success in your life. और आपने देखा होगा जितने भी the greatest personalities हैं, they achieve success because they were disciplined. जैसे सचिन तेंदुलकर अगर इतने ग्रेट हैं वो इसलिए क्योंकि वो डिसिप्लिन थे। Then there is gratitude, कि to show gratitude is a capability only of a great person. वो हमेशा ग्रेट पर्सन की ही कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है वो ग्रेटिट्यूड शो कर पाए। एंड मल्टीपल ऑफ अदर वर्चूज हेयर आल्सो, जिसमें आप जैसे हमने पहले बोल दिया, जैसे कर्जियस जो है वो करेज है, वो एक हमारा वर्चू है। ऑनेस्टी हमारा एक जो वर्चू होता है। फेथफुलनेस हमारा एक वर्चू होता है। ट्रूथफुलनेस, जैसे बोल सकते हो ट्रूथफुलनेस एंड बिलीफ, कि बोथ ऑफ दीज वर्चूज एक्चुअली सॉलिडिफाई अवर रिलेशंस। हमारा जो सोशल रिलेशन है किसी के साथ भी, वो ड्यू टू दिस ट्रूथफुलनेस या ड्यू टू बिलीफ हमारा वो उसमें सॉलिडिफिकेशन होती है। तो मॉरल ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कि वन शुड बी वर्चुअस, वन शुड ऑलवेज लिव अ लाइफ फुल ऑफ वर्चूज, या वंस लाइफ शुड ऑलवेज बी राइटियस, वन शुड ऑलवेज फॉलो मॉरल्स एंड एथिक्स। एंड इन दिस रिगार्ड once Tiruvalluvar wrote in Tirukural that there is no greater wealth than virtue, कि virtue से ज़्यादा greater wealth कोई भी नहीं, कि there is no greater wealth than virtue and there is no greater loss than to forget it, कि अगर हम अपने वर्च्यू को भूल जाएं या अगर अपने वर्च्यूज़ को भूल जाएं तो उससे ग्रेटर जो है वो कोई लॉस नहीं हो सकता। इट मीन्स एवरी पर्सन, चाहे वो एक कॉमन पर्सन है, चाहे वो कोई सिविल सर्वेंट है, दैट पर्सन शुड बी वर्चुअस। ये हमारा टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ डियोंटोलॉजी, लेकिन उसको हम लोग अपने नेक्स्ट जो है उसको लेक्चर को देखेंगे। इसको यहीं तक रखेंगे। ओके, थैंक यू।